नमस्कार, आपका स्वागत है एमएसटीवी में। मैं हूँ नेहा चौहान और आज मैं मौजूद हूँ एक आर्टिस्ट, पेंटर अरुंधति महतो मैम के साथ। वी वेलकम यू मैम। हेलो, हेलो सो नेहा। मैम आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन भी थी। यस तो मैम। उसके बारे में आप कुछ बताइए। First of all, I would like to say Happy Women's Day to all the lovely ladies listening and watching me. This is obviously a great day to celebrate, but why only this day? We women are the support of the society. I feel यस, we are the support of the society. Without women, I feel the society cannot exist. At the smallest unit, if I talk about the home, even it cannot exist without women, जी, without a mother. So obviously, it's a great day. Obviously, we can have a day to celebrate. But yes, I feel very honored. Thank you so much. Yes, my exhibition was very good yesterday, and thank you so much for bringing me here on this platform to speak about myself and to know exactly what I have. I mean, what my thoughts are. Thank you so much. सो मैम जो आपकी जो पेंटिंग थी, जो कल एग्ज़िबिट हुई थी, तो उसमें ना आपने एक पर्टिकुलर स्टाइल जो हुआ था, उसके Hmm. बारे में आप बताइए? The theme was actually the painting, the exhibition name was Pink Iron 3. पिंक, So the name itself says pink is the color which represents women, femininity, जी, love, tenderness, softness, यस, and iron is the strength that signifies and that denotes a lady. So I feel for this I had to make a painting, and I had painted the journey of a woman when she's born, uh, and right from the beginning, she's with her mother. Then after mother, she goes to school. There is the teacher is also a woman. A woman is teaching her. So I mean the growth of a child. I have basically girl child. Basically, I had drawn, and it was in the form. Actually, I'm a folk artist. I do ओके, tikuli painting. So I had tried to incorporate my art skills into the painting. So I was really happy doing that, and I had given the title Divine Feminine, because feminine for me is something which is like present everywhere, यस। just like God, and can do everything what God can do. यू आर So कन्वेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज थ्रू योर पेंटिंग। yeah, सो माय नेक्स्ट thank you so क्वेश्चन टू much. यू इज कि जब आपने पेंटिंग जो बनाई थी तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई एज एन आर्टिस्ट? आई मीन यू आर अ टीचर आल्सो Yeah, एंड अ होम मेकर। yes. सो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? Actually, I was in class 5 when I started painting. My father was in Reserve Bank, and he was posted in Patna that time. And there was a painting competition in his office, and he asked me because I used to draw. जी, So he asked me to participate, and the theme was given like you have to draw your dream. That was the theme given to us, and I was in class grade 5, and I could not recall think so much, but my I got first prize because I had painted a girl and she was flying to catch the moon. So I mean my desire was, my dream was, I should grow such to such level that I can catch the moon दैट्स someday. लवली। So I got first prize for that, and then my father was very happy, and he said, Fine, I'll support you." And then I started learning. So this year, my drawing sir, Padam Shri Ashok Kumar Vishwas, he got Padam Shri for this year 2024. He was my guru. So he taught me the basic sketching, दैट्स अमेजिंग। and then he taught me tikuli art. And from then, it was way, I guess, year 1994 when I started learning from him. And then as a mother, every woman go through that journey after marriage, after family. It was completely stopped. So around 10-15 years, I couldn't do anything. But once my kids grow up, and then I got time, I said, let me start my dream again. So I started my painting again, and I'm very happy doing that. दैट्स So वेरी thank इंस्पायरिंग। you. मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जब पेंट करती हैं, सो डू यू प्लान योर पेंटिंग और लेट योर इंट्यूशन गाइड यू? My intuitions guide me. Sometimes you have you like, for an artist, there are a lot of things that inspires you a lot. When you go out somewhere, you meet यस, somebody, somebody's personality inspires you. There are some things which inspires you. So those thoughts are definitely in your mind, and then your art skills. Like यस, you are good at sketching maybe, or you know some art form. Like I know Tikuli, this is a folk art, or I know little about Madhubani. So these things, I mean, intuitions are definitely there, but then references also help you a lot, and I guess these two help me a lot.
in drawing in. Okay, that's lovely, ma'am. मैम अभी आपने एक जवाब भी दिया था जिसमें हमने बोला था ना आफ्टर मैरिज यू हैव लाइक 15 years Mm, and you haven't done anything in yeah, that particular year. it was a gap. So okay, so on International Women's Day I wanted to ask you, are we really free mentally? No, we are not. I afraid, but this is the fact. I would say we still are not free to that level, because if I'll just give you an example, if today I have to go to an art exhibition to another city, maybe at 5 in the morning, I may have to plan the whole day Right. before leaving. Wherein my husband has to go, then he will not plan for the day. He'll just pack his bag, and he'll maybe even I'll help him in packing the bags also. So I agree that it's a family, and we should help each other, Yes. and we are the support to each other. But still, that freedom is not still available. I mean, available to we ladies. We still think about the family. Who will take care of my kid for the whole day? Who will feed them? Food they will have? So I'll have to plan the whole day before leaving. Everything is depend So on women. yes. So again, so that mental freedom is still to get. And also, I would definitely say, if you go on the road at 10 in the night, you will not get a single female taxi driver. So even that, matlab, we need that kind of freedom. Then only we can say yes, we can celebrate Women's Day now. Right. I We mean have it's that kind of security in the society, in the family. The you can say the mental freedom is still to get. But yes, we have come a lot. We have broken a lot of barriers. We women's are there in every field, you can say, be it sports, be it economics, be it science, be it politics. Women's are coming everywhere, and they are doing very good, given whatever chances they have. But yes, there are some gaps, and we need to fill that. yes, very true. Very true, ma'am. So, So in your opinion, any three changes you wanted to see in future as in women yes, perspective? yes, yes. What I feel is, what is your thought is the thought of the society. I feel so. This has to come from every woman in the society, right from the home. Like if I have to go for a meeting, the elder in the family, the women elder in the family, she should not question me who will take care of the child, right? Or the Right. society should not ask me, if you are going for 2 days, who will take care of your child, or who will take care of your home, right? So we women, as a women, we have to understand, we have to take this initiative, we have to change our mindset, and we have to come up with this, if she's going, then there must be something important Important, right. to attend, and they should respect that. So that has to start. I mean, so first thing I'll say, the women in the family has to change the mindset. They have to think of themselves first, then the family comes second. Obviously, if you will change, you will make the society change. If you will be adamant ki no, this is my priority today, this is my priority. Right. So if you will prioritize yourself, your work, then only the people in front will understand, and slowly and gradually he or she will come to it. Otherwise, it will not. And the third thing, obviously, the security in the society, the safety in the society, which is very much important, Very concerning. very concerning also, because if at 10 in the night, if I can freely go to my home, I can say that the whole infrastructure is helping, right from the traveling part, or the time we spent on the road at 10 in the night. So that security and safety has to be there. So that is the government concern, which we definitely require. So I will say these three Mm. things are there. Nice. I mean, it's very crucial too. I mean, Yeah. you talk about the safety. Yes. We see the cases. I mean, A we as a lot. girl, we as a woman, we don't Yes. feel safe. So how the country gonna Country, develop? and actually, Yeah, very it, true. it has to come from the home first, obviously, being the smallest unit of a society. The home, it has to come from the home. And then mothers has to teach their boy child Yes, that we all are human beings. exactly. Not Leave an male object. and female, leave male and female, that is second part. We are all are human beings. True. If it is hurting me, it is hurting her or him also. So they should understand this first. And this is very basic. This is very basic. Right. And one more thing. I mean, the responsibility should be shared equally. Equally, actually. It should Okay. be, if you are eating, I'm also eating. You are breathing, I'm also breathing. Then why should I only cook and you cannot cook? I mean, this is a simple, you can say, family habit. Yeah, I So think it's it true. has to be, yes. True, ma'am. Moving on to my next question.
have you heard about that homemaker didn't get that much respect if we compare to the female who is working? That Yes, current trend is going on. I mean, yes, people don't give that much respect. I mean, our respect. mother, who is a Yes, homemaker, yes, yes. is like that. Yes, this there should be. There was some politician, I cannot recall the name, but there should be a government initiative in that they should be having a payout for them as well, because they That would be a very homemakers. great Because see, initiative. we respect comes from financial freedom, True. and if you do not have the financial freedom, you are not given that kind of respect and that kind of significant importance which is required. And she is a homemaker, is someone who is helping a citizen of a country. She is building a citizen of a True. country, so she should be given that respect, that she is really doing a great job. And she should be, and for that I definitely think there should be some payouts to them as well, which can even keep them motivated also, True. plus that can give them the respect also, they can earn that respect. That's a very, very It's great just thought. that they don't they are not given anything out of it. They themselves feel very bad about it. I mean, I have met a lot of housewives who say, I do nothing. I helped my husband, I helped packed his bag, I washed his clothes, I ironed, because I do nothing. I said, how can you say you do nothing? You're doing everything. You're doing everything, and you're not giving the importance and respect for that. True. So please try to understand your first you respect yourself, and then people will respect you. But yes, housemakers are really doing great job, Very true, ma'am. and we all do. I mean, Very true. as a professional lady also, and as a artist also, as a mother also, we all do. Thank you so much, ma'am, Sure. for sharing such an insightful session about Thank you. on the great day, the International Women's Day, and Yeah. also as an artist. Thank Yeah. you so much, ma'am. Thank you so much. You're watching MSTV with Neha Chauhan.
नमस्कार, आपका स्वागत है एमएसटीवी के टॉक शो रूबरू में। मैं हूँ नेहा चौहान और आज मैं मौजूद हूँ शाश्वती चौधरी मैम के साथ, हु इज़ एन आर्टिस्ट। वी वेलकम यू मैम Thank you. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे मैम। Same to you also. मैम आपकी पेंटिंग जो है वो एग्ज़िबिट हुई थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए? ये पेंटिंग जो है स्पेशली जो पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले जी, हुआ था ये एक्चुअली लास्ट ईयर दिसंबर में एक कैंप हुआ था बिमला आर्ट फोरम के तरफ से गुड़गांव में वहाँ पे बनाया गया ये जी, 3 दिन का कैंप था तो बहुत कम टाइम पे बना हुआ ये पेंटिंग था तो उसका जो टॉपिक था वो मैं खुद ही को पेंट किया था जी, जस्ट टू सर्चिंग फॉर अ टॉपिक काइंड ऑफ जनरली मेरा तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है बट जी। कैंप का जो है टाइमिंग कम होता है तो हम कुछ और सोच के बनाते हैं तो वो थोड़ा-सा रियलिस्टिक इंस्टेंट सिचुएशन को लेके मैंने पेंटिंग करा था। दैट्स लवली मैम। हुँ। जैसे कि पेंटिंग्स जो होती हैं, उनमें अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स होती हैं, कंटेम्परेरी होती हैं, कुछ फ़ोक आर्ट होती है, तो आपने कौन-सी स्टाइल यू चूज़ करी थी अपनी हाँ, पेंटिंग्स मैं के लिए? एक्चुअली कंटेम्पोरेरी आर्टिस्ट हूँ। ओके। फ़ोक आर्ट मैं शौक से कभी-कभी करती हूँ बट मेन मैं कंटेम्पोरेरी में ही हूँ। ओके मैम। तो मैम जैसे कि आपकी पेंटिंग्स का जो स्टाइल है, तो जैसे आप कभी भी पेंटिंग जब बनाने की सोचते हैं, तो डू यू प्लान करते हो आप उस चीज़ को या फिर आप ऐसे ही अपने इनिशिएटिव जो होते हैं, खुद ही आप स्टार्ट कर देते हो कि दैट यू जस्ट टेक अ पोर्ट्रेट एंड स्टार्ट पेंटिंग? नहीं एक्चुअली देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेस तो अगर बहुत सोच के जो करते हैं जी, उसके लिए जनरली हमने जो सीखा मैं एक आर्ट कॉलेज बैकग्राउंड से आती हूँ जी, तो इसीलिए टेक्निकलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है जी, तो पहले मैं एक स्केच बुक में उसका आइडिया डेवलप करती हूँ फिर उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन में ध्यान देती हूँ फिर जाके जब फाइनली मुझे लगता है कि ठीक है अभी कैनवास के लिए देन आई स्टार्ट पेंटिंग ऑन कैनवास तो ये तो प्रोसेस है फिर कैनवास के अंदर भी एक टेक्निक रहता है अंडर पेंटिंग की कहाँ जी, कहाँ मैं डेप्थ करूँगी, कहाँ लाइट रखूँगी, उसका एक आइडिया कर लेती हूँ एक मोनोक्रोम में। देन आई गो फॉर कलर तो ये मेरा तो प्रॉपर प्रोसेस है। लेकिन कभी-कभी इंस्टेंट में होता है और मिक्स मीडिया जब मैं करती हूँ, जी, उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है। क्योंकि उसमें आप बहुत 3-4 मटेरियल आपके पास है, आप उसको अप्लाई करके कोई आइडिया डेवलप करते हो। तो उसका क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट, यू डोंट नो एंड में क्या होने वाला है। जी। ये भी एक प्रोसेस है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई एज़ एन आर्टिस्ट? देखिए मुझे आर्ट कॉलेज का कोई आइडिया नहीं था। तो ये जर्नी शुरू मेरा हुआ बचपन से मैं ड्राइंग तो करती थी हुँ, बट आई नेवर हैड हैड एनी आइडिया कि आर्ट कॉलेज करके कुछ है जी, दुनिया में और आर्ट की पढ़ाई होती है। ये कोई आइडिया नहीं था। मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट था, स्पेशली मैथ, तो इसीलिए मैं साइंस पढ़ रही थी। तो उसमें बहुत सारा सिटी चेंज हुआ था मेरा फैमिली पापा का ट्रांसफरेबल जॉब के लिए। तो इसीलिए और मेरे फैमिली में एक ट्रेंड था कि हमेशा म्यूज़ियम दिखाना। तो उससे क्या होता है कि एक आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक आइडिया होता है और एक लाइकिंग डेवलप होता है। जी, और मेरे पापा को भी मैं देखती थी, मम्मी को भी देखती थी, दे बोथ यूज्ड टू ड्रॉ। पापा का कार्टून ड्राइंग करना था, मम्मी स्केच करती थी, तो मैं भी स्केच करती थी। लेकिन उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि आर्ट कॉलेज करके कुछ है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई उनके तरफ से ये चीज़ नहीं था जी, आइडिया। तो कलकत्ता जाने के बाद भी हम बहुत सारे म्यूज़ियम्स देखे और कलकत्ता सिटी थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो मैं जब गई थी तो सारे फिर से म्यूज़ियम देखना, वहाँ का वो सिटी थोड़ा-सा ब्रिटिश टाइम पे बना था तो आर्किटेक्चर्स भी डिफरेंट है। तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरा स्केचिंग देखने के बाद उन्होंने कहा कि सब जगह तो देख रहे हो लेकिन मैं एक अलग ही जगह पे तुम्हें ले जाता हूँ, तो उसको देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो उनका भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरा जी, रिएक्शन क्या होगा। तो इंडियन म्यूज़ियम का ही लास्ट गेट जो है, वो आर्ट कॉलेज है। तो म्यूज़ियम देख के हम वापस आते हैं, कभी उधर तो जाते नहीं हैं। ये एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट कॉलेज इन इंडिया जी, एंड एशिया ऑल्सो। तो ये ब्रिटिश ने बनाया था। तो उस बिल्डिंग में जब हम गए, उस बिल्डिंग का जो ब्रिटिश ज़माने का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है और उसमें जो मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो जी, ग्रीक स्कल्पचर्स, उसको देख के एक्चुअली आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे तब ऐसे लगा कि मुझे क्यों ऐसे किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ दुनिया है और ऐसा भी पढ़ाई होते हैं। तो मे बी देयर वाज़ सम कनेक्शन। तो फिर अंकल को भी लगा कि कुछ करना चाहिए तो फॉर्म मिल रहा था, उन्होंने फॉर्म लिया। बट उन्होंने ये भी बोला कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी आसानी से नहीं मिलता है एडमिशन, तो यू हैव टू ट्राई एंड मे बी यू हैव टू टेक ट्रेनिंग 1 ईयर लेकिन फिर भी एक बारी आप एग्ज़ाम दे दो।
तो हुआ ऐसे, डेस्टिनी ऐसा था कि उसी बार मेरा एडमिशन हो गया और वो था 1979। जी, तो उस ज़माने से अभी तक मतलब इट्स मोर देन 40 इयर्स मेरा जर्नी चलता रहा और उस टाइम 5 साल 7 साल लंबा कॉलेज होता था। 5 साल। हाँ, अभी तो 4 साल है, खत्म हो जाता है। उस टाइम 2 साल फाउंडेशन होता था, फिर हमें 7 साल लगा क्योंकि डिप्लोमा था जब मैंने एंट्री लिया, जी, फिर बाद में डिग्री में कन्वर्ट हुआ, तो हम फर्स्ट डिग्री बैच थे। लेकिन क्लासेस होते रहे, तो पेंटिंग के साथ-साथ मैंने प्रिंट मेकिंग, म्यूरल ये सारा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स था, तो ये सब भी मैंने पढ़ा और डिग्री हो गया तो एस्थेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, सो सारा कुछ कवर करने में मेरे ख्याल से दोज़ इयर्स वर यूज़फुल एंड मीनिंगफुल फॉर मी। okay, ma'am. Moving on to my next question. We are celebrating Women's Day. So, any three things you wanted to change in your perspective regarding women's? मतलब in society. इन सोसाइटी Yes. सबसे पहले तो मुझे ये होगा कि वुमेन जो है ना उनको अलग तरीके से नहीं देखना है, वो भी एक इंसान है जी, और मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर एक मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है। तो इसीलिए उसको इग्नोर नहीं करके मतलब उसको एक अलग एंटिटी नहीं बनाना है, मतलब जी, जैसे एक होता है ना वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स डे, ये सारा थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा अलग करने का होता है कि जैसे मेन स्ट्रीम से आप अलग हो, सो वी आर सेलिब्रेटिंग यू। हुँ, ऐसा एक फीलिंग भी कभी-कभी मेरे मन में आता है। जी, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हम वुमेन को देवी बनाते हैं, बट इन रियलिटी बहुत सारा कुछ उनके अगेंस्ट भी चलता है। सो जी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है और उस कॉन्ट्रडिक्शन से हम निकल तभी सकते हैं जब हम उनको इंसान समझेंगे। बिल्कुल, जैसे मेन के अंदर भी सारी इच्छाएँ होते हैं, उ उनका करियर के लिए भी बहुत कुछ सपना होता है, सेम ड्रीम फैक्टर वी आल्सो हैव। लेकिन हम हमें बचपन से उसको सप्रेस करने का एक सोसाइटी बना हुआ है और कुछ ऐसे आता है वो डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं आता है। जी, आप अपने आप उसमें चले जाते हो, समझ में भी नहीं आता है, यू यू आर बीइंग सेपरेटेड। ये चीज़ अगर सुधर जाता है ना बहुत कुछ अच्छा होता। so that's the one thing. What about the second? सेकंड थिंग है कि वुमेन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपना सपना को लेके ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उसको हमेशा एक बैक स्टेज में रख देते हैं, नहीं वो पहले है, वो पहले मतलब खुद का जो सपना है उसको उसके लिए भी तो आप काम करोगे ना, जी, तभी तो आपको मिलेगा। इट्स नॉट एवरीबॉडीज़ फॉल्ट। तुम्हारे अंदर जो है वो तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करो। जी, जैसे पेंटिंग में ये बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आता है, जैसे आप कॉलेज से पढ़ के तो निकलते हो, लेकिन कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या है कि यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल। ओन स्टाइल डेवलप करने के लिए अगर आप काम नहीं करोगे, हू इज़ गोइंग टू डू विथ यू फॉर यू? no one. नो वन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के वुमेन जो है ना, वो खुद ही खुद के अगेंस्ट बहुत काम करते हैं जो जी, सुधरना चाहिए। and what about the third thing? थर्ड थिंग है कि क्या बोलूँ मैं, काम के लिए कभी-कभी मैं देखती हूँ कि लेडीज़ बहुत सीरियस नहीं है। हो सकता है ये मेरा सेकंड थॉट से जुड़ा हुआ जी, बात है, बट थोड़ा पढ़ना चाहिए और आई एम नॉट इनटू टू मच ऑफ स्पिरिचुअलिटी। okay, ये भी मतलब मैं नेगेटिव उसमें नहीं बोलती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ गुड थिंग, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। और स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा वुमेन घुस जाते हैं। कई बार प्रैक्टिकलिटी से दूर, रियलिटी से दूर, थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है, मैं पहले का क्वेश्चन आंसर से जुड़ा हुआ ही जी, बोल रही हूँ, बट दीज़ आर द रिलेटेड थिंग्स जो हमें पीछे खींचता है। ट्रेडिशन हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ प्रोग्रेसिव होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव नहीं होने से आर्ट करना तो मुश्किल है, एंड स्पेशली कंटेम्परेरी आर्ट। जी, क्योंकि कंटेम्परेरी आर्ट के साथ जो आपका ट्रेडिशनल आर्ट है, उसका मेजर फ़र्क यही है कि कंटेम्परेरी इज़ थिंकिंग आर्टिस्ट। तो थिंकिंग आर्टिस्ट मतलब आपको समाज को जो ऑब्जर्व करना है ना, वो थोड़ा-सा आपको इंटेलेक्चुअली उसके पीछे काम करना पड़ेगा जी, और रियलिस्टिक सिचुएशन को समझना पड़ेगा और उसका फिर रिफ्लेक्शन आप आर्ट के थ्रू दोगे, यही कंटेम्परेरी आर्ट है। बट जब हम ट्रेडिशनल में जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो आपको ट्रेडिशनली सिखाया जाता है, आप उसी को फॉलो करते हो। बिल्कुल, देयर इज़ नथिंग एडिंग टू इट। और स्पेशली इन दिस एरा व्हेन आई एम कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, मेरे पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारा काम कर चुके हैं। सो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि समथिंग न्यू वी हैव टू क्रिएट। एक बहुत साल चला जाता है, मतलब आप पास करने के बाद आप टेक्निक तो सीख जाते हो, बिल्कुल, टेक्निक एंड स्किल इज विथ यू,
और जो समाज में हो रहा है वो तो अपने आप हो रहा है, बट उसका रिफ्लेक्शन मेरे तरफ से क्या होगा, ये एक बहुत सोचने वाली उसके लिए रीडिंग ज़रूरी है। मैंने जहाँ जहाँ तक इतने लंबा इस फील्ड में रह के देखा है कि नॉट ओनली फीमेल, मेल्स आल्सो समटाइम्स दे डोंट रीड मच। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को पढ़ना चाहिए और ऑब्जर्वेशन और क्लैरिटी करना चाहिए, तो अच्छा कंटेम्प्रेरी आर्ट बनेंगे। जैसे हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, बिल्कुल। वैसे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको लिंक करना भी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मेरे ज़माने में एक्राइलिक मीडियम नहीं था, ओके। ओनली ऑयल ऑन कैनवास। उस टाइम कोई भी रेडी मटेरियल नहीं मिलता था। सो वी यूज्ड टू क्रिएट आवर कैनवास, और टेक्सचर व्हाइट बॉटल मिलता था, समटाइम्स वी हैड टू मेक दैट लिक्विड इवन। वो सारा जो टेक्निक है ना, अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो सिखाया नहीं जाता। हमारे टाइम पे वो मार्केट में नहीं मिलता था, तो वी एडॉप्टेड मेनी थिंग्स। अभी मिलता है। जी। तो और जब मैं मिक्स मीडिया में काम करती हूँ, मैं कोलाज को लेके बहुत काम किया है। तो कोलाज ऐसे सुनने में बहुत सिंपल आइडिया लगेगा, लेकिन मैं उसके पीछे बहुत नए ट्रीटमेंट करती हूँ, जो आपको प्रैक्टिस से आता है। यस, वेरी ट्रू। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यस, यस, डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैम आप ये जो कंटेम्प्रेरी जो आप स्टाइल फॉलो करते हैं, तो आपने इसी को ही क्यों चूज़ किया? आई मीन अदर स्टाइल्स को क्यों नहीं फॉलो किया? सी देखिए, अदर्स मैं आर्ट कॉलेज में एंट्री ली तो वो मेरे साथ मतलब वो नेचुरली आ गया। ओके। और ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल आर्ट मैंने कभी किया नहीं, किया है। लेकिन ट्रेडिशनल को मैंने अपनाया इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पुराने ज़माने का फ़ॉलो करूँगी। वो मैं कभी-कभी रिसर्च वर्क में करती हूँ, जी। क्योंकि मैं म्यूज़ियम के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। फाइन आर्ट के बाद मैंने एमए इन म्यूज़ियोलॉजी किया है, तो मैं उसको रिसर्च वर्क की तरह करती हूँ। कभी-कभी मैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आई राइट ऑल्सो, ओके। 2-3 मैगज़ीन में मैं लिखती हूँ, तो उस टाइम मैं उन चीज़ों का चर्चा करती हूँ। दैट इज़ आवर रूट। तो हो सकता है कि मेरा कोई कंटेम्परेरी ड्राइंग के अंदर या पेंटिंग के अंदर आपको कहीं जाके वो रूट आपको मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी को फ़ॉलो करूँ। जी। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ न्यू स्टेटमेंट हो, मतलब यू ब्रिंग आउट न्यू थिंग्स विद योर माय माय पेंटिंग। ओन स्टेटमेंट। ओके। कंटेम्पोरेरी में ही वो पॉसिबल है कि मेरा जब सिग्नेचर जा रहा है, तो मेरा सिग्नेचर स्टाइल क्या है? यस। वो क्या है? मैं क्यों आर्टिस्ट बनी हूँ? मेरे मेरे पास वो सवाल ज़्यादा बड़ा है। दैट्स रियली अ, लवली। हाँ, ट्रेडिशनल आर्ट में तो वो मधुबनी कोई कर रहा है, मैं वही उसी स्टाइल में, तो मेरा तो अपना कुछ है नहीं ना उसमें। वेरी ट्रू। आई एम जस्ट फॉलोइंग समथिंग। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने बताया कि पेंटिंग्स के बारे में हमने बात करी, तो आपकी जर्नी जो थी, आपने बताया कि आपने इतने 1980 1997 से 1979 से मैं आर्ट हाँ जी, कॉलेज में आपने गई थी, और फिर 87 में 86 में मैं निकली वहाँ से। तो ऐसी कोई पेंटिंग है जो मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू जिसके पीछे कोई बैक स्टोरी हो, जो काफ़ी आपको लगता है कि ये बहुत फनी भी है या फिर इंटरेस्टिंग है जो मेरा आपको अभी तक पेंटिंग, जी। वो मैं आर्ट कॉलेज का ही जो पहला 3rd ईयर में हम जब ऑयल पेंटिंग शुरू जी। किए, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस था वो यूरोपियन एकेडमिक था। ओके। तो उसमें बहुत स्लोली चलता है, पहले ड्राइंग करो, पहले फिर स्केचिंग करो, फिर चारकोल करो, फिर वाटर कलर करो, फिर जाके आपको ऑयल मिलेगा। ऑयल में भी फिर आपको पहले मोनोक्रोम करना पड़ेगा, फिर कलर। तो 3rd ईयर के एंड में जब कलर ऑयल पेंटिंग हमारे लिए अलाउड हुआ, तो मैंने एक पेंटिंग करी। वो हमारा जो आर्ट कॉलेज है ना, वो ब्रिटिश ज़माने का बिल्डिंग है, जी। और उसका लकड़ी का सीढ़ी है, वुडन स्टेयर्स। वो हमारे लिए बहुत ड्रीमी लगता है, और जो कॉलेज का वो जो सीढ़ी है ना, वो जी। कभी अनफॉरगेटेबल है। मतलब अभी भी हम जाते हैं, तो वो हमारे लिए नॉस्टैल्जिया है। तो हम लोग कभी-कभी हम स्पोर्ट्स भी करते थे ना कॉलेज में, तो बॉल लेके खेलना, ये सब भी स्टूडेंट लाइफ में होता जी। था। तो शाम तक काम कर रहे थे, तो एक बॉल ऊपर से किसी ने फेंका था, और फिर वो सीढ़ी में ड्रॉप होते-होते नीचे जा रहा था, तो बॉल तब हवा में था, उसका शैडो जो सीढ़ी में आया था, और वुडन स्टेयर पे लाल कारपेट होता है, हुँ। उसको लेके मैंने किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक मेमोरी है। दैट्स लवली मैम। So any message you wanted to give to our viewer, especially to the young girls on this special day? Young girls, I think I have enough told you what Okay, for the they should viewers. do. As an artist point of view, I think कोई भी प्रोफेशन में आप हो, थोड़ा सा अगर आर्ट में भी अपना कुछ करे, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि
क्रिएटिव प्रैक्टिस जो है ना आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो थोड़ा हमारा ह्यूमिलिटी, हमारा जो लिमिटेशन जो होता है वो हमारे सामने आते हैं। तो समटाइम्स दैट मेक्स अस हम्बल, तो हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, ma'am, for sharing such an insightful session with me. Thank you so much. थैंक यू सो मच। You're watching MS TV Talk Show Rubaru with Neha Chauhan.